Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का श्लोक है तथैवानुचरा सौरे श्रुत देवोधव वादयः सुनंदानंद शीर्षण्या एचाने सात्वतरषभः अपि स्वस्ति आसते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्ध सौहृदाः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Also, Shrutadeva, Uddhava and others, Nanda, Sunanda, and other leaders of liberated souls were constant companions of the Lord, are protected by the Lord Balram and Krishna. Are they all doing well in their respective functions? Do they, who are all eternally bound in friendship with us, remember our welfare? Purport: the constant companions of Lord Sri Krishna, such as Uddhava, are all liberated souls, and they descended along with Lord Sri Krishna to this material world to fulfill the mission of the Lord. The Pandavas are also liberated souls who descended along with Lord Krishna to serve him in his transcendental pastime on this earth. As stated in the Bhagavad Gita 4.8, Paritranaya sadhuna vinashaya cha dushkrita dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. The Lord and his eternal associates, who are also liberated souls, are like the Lord, come down on this earth at certain intervals. The Lord remembers them all, but his associates, although liberated souls, forget due to their being Tatastha Shakti or marginal potency of the Lord. There is a difference between the Vishnu Tattva and Jiva Tattva. The Jiva Tattvas are infinitesimal potential particles of the Lord, and therefore they require the protection of the Lord at all times. And to the eternal servitors of the Lord is pleased to give all protection at all times. The liberated souls never therefore think themselves as free as the Lord or as powerful as the Lord, but they always seek the protection of the Lord in all circumstances, both in the material world and the spiritual world. This dependence of the liberated soul is constitutional, for the liberated souls are like sparks of a fire that are able to exhibit the glow or fire along with the fire and not independently. Independently, the glow of the spark is extinguished, although the quality of fire or glowing is there. Thus, those who give up the protection of the Lord and become so-called lords themselves out of spiritual ignorance come back to this material world, even after prolonged tapasya of the serious type. That is the verdict of all Vedic literature. Mukam karoti vachalam pangum langayate grim yat kripatamaham vande Sri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram.
हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो ये जो अध्याय है, तो इसमें आगे वही जो युधिष्ठिर महाराज है वो सबका जो है क्या कहते हैं वार्ता मतलब अर्जुन से पूछ रहे हर किसी के बारे में। तो मैं एक भक्ति चारू स्वामी महाराज बता रहे थे एक बार कि जो भक्त होते हैं उनको भी इसी तरह से, मतलब जो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे कर रहे हैं, हर किसी की बारे में जो अभी यहाँ पूछ रहे हैं, आगे चल के अभी वो श्रुतदेव, उद्धव, फिर नंद, सुनंद, इन सब के बारे में जो पूछ रहे हैं, उनके मतलब कुशल मंगल वो कैसे है। तो तो भक्तिचार्य स्वामी महाराज बता रहे थे एक बार कि हम भक्तों को भी इसी तरह से, मतलब हर किसी का बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भक्त है केवल उनका, लेकिन जो भक्त के परिवार के बारे में भी, मतलब उनके परिजनों के बारे में हमेशा इस तरह से चिंतन करना चाहिए। उनका कुशल मंगल, मतलब वो लोग भक्ति में कैसे बढ़ रहे हैं, ये भी हमको हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हम लोग एक दूसरे का बहुत प्रशंसा करते हैं और हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये जो भक्त है उत्तम भक्त है, वो अच्छी बात है। लेकिन उसी के साथ जो एक वरिष्ठ भक्त होते हैं उनको हमेशा पूछना चाहिए कि उनकी भक्ति कैसी चल रही है, उनकी माला कैसी हो रही है, उनका अध्ययन कैसा हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग केवल प्रशंसा करते रहेंगे, तो कभी कभी हम लोग एक रॉन्ग मैसेज दे सकते हैं, जो सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि शायद भक्ति मतलब अभी जो मैं कर रहा हूँ इतना ही है, इसके आगे मेरा और कोई प्रगति का कोई टेंशन नहीं। क्योंकि हर बार जो भी भक्त मिलते हैं हमेशा प्रशंसा करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी युधिष्ठिर महाराज इस सब लोगों का कुशल मंगल पूछ रहे हैं। भले ही ये जो यहाँ पे तो अलग स्थिति है, यहाँ पे जो है सारे भक्त उन्नत भक्त है। जो भी जैसे उद्धव उद्धव के बारे में, जो भगवान के बहुत ही करीबी मित्र तो वो तो भगवान कहते उद्धव और मुझ में कोई अंतर नहीं है, इतना तक भगवान कहते हैं। फिर यहाँ पे श्रुतदेव, नंद, सुनंद, तो ये सब यहाँ पे अनुवाद में लिखा गया है मुक्त आत्मा है, दे आर ऑल लिबरेटेड सोल और कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ द लॉर्ड और ये भगवान के नित्य पार्षद है। और हमेशा भगवान श्री कृष्ण और बलराम के ये लोग आश्रय में होने के कारण इनके हमेशा भगवान रक्षा करते रहते हैं। तो हम लोगों को हमारे बीच में भी ऐसे भक्तों का ऐसा चिंतन करना है, उनके बारे में उनके साधना के बारे में ऐसे पूछते रहना चाहिए कि आप लोगों की साधना कैसी हो रही है, भक्ति कैसी हो रही है। ये युधिष्ठिर महाराज जैसे यहाँ पे उनके बारे में पूछ रहे, तो हम लोगों को भी पूछते रहना चाहिए कि ये अपना एक उत्तरदायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि केवल प्रशंसा करते। क्योंकि जब ऐसा हम करेंगे तो जो सामने वाले भक्त उनको भी लगेगा कि मुझे भी उन्नति करनी है भक्ति में, मुझे भी अच्छी तरह से माला करनी है, मुझे भी रीडिंग वगैरह ये जो है ये मुझे अच्छी तरह से करना है। तो ये प्रिंसिपल यही है कि हम लोगों को भक्तों का इस तरह से ख्याल रखते हुए उनके प्रगति का ख्याल भी रखना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये सारे जो भक्त है ये मुक्त जीव है। जैसे कि हम जानते हैं नित्य बद्ध और नित्य सिद्ध, नित्य मुक्त। तो हम जो है जो इस भौतिक जगत में जो हम लोग है, हम लोग जो है नित्य बद्ध के कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि हम लोग नित्य बद्ध के कैटेगरी में क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा जो स्थिति है, हम लोग कभी कभी नहीं, हम लोग जब भगवान से द्वेष और ईर्ष्या करके यहाँ पे आए थे, तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे आके स्वामी बनने का कोशिश किया, यहाँ पे आके भोग करने का हम लोग प्रयास किया और अभी कर भी रहे हैं। इसलिए हम लोगों को नित्य बद्ध कहा गया है। और ये जो नित्य सिद्ध या नित्य मुक्त जो जीव है,
इनका क्या है, ये भगवान के नित्य पार्षद है, और जब भी भगवान को कहीं पे भी लीला करनी होती है किसी भी ब्रह्मांड में, तो भगवान इनको हमेशा अपने साथ लेके जाते हैं। और इनको नित्य सिद्ध इसलिए कहा गया है क्योंकि वो जब आध्यात्मिक जगत में भी रहते हैं तब भी वो भगवान के आश्रय में रहते हैं और भगवान के सेवक बन के रहते हैं। वो कभी भी उनके मन में ऐसी इच्छा प्रकट नहीं होती कि मुझे भगवान बनना है या मुझे भोगी बनना है या मुझे स्वामी बनना है। तो और हमेशा वो भगवान के संरक्षण में ही रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जगत में है तो उनको लगता है कि अभी मैं मुक्त हूँ। तो जो जीव है, जो तटस्थ शक्ति जो हमको कहते हैं जीव, वो हमेशा किसी भी स्थिति में, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो या भौतिक जगत में हो, वो हमेशा जो है भगवान के ऊपर आश्रित है। तो और उसका जो नित्य कृष्ण दास का जो पोजीशन है वो कभी चेंज नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे ही आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो फिर हमको भगवान की जरूरत नहीं है। नहीं, वहां पे भी हमको भगवान की जरूरत हमेशा रहेगी। तो हम लोगों को नित्यबद्ध इसलिए कहा गया है क्योंकि हम जो जीव है, अगर कल मानो अच्छी तरह से भक्ति करके हम आध्यात्मिक जगत में पहुंचे भी, तो क्योंकि हमारे अंदर वो एक स्वामी बनने का जो एक इच्छा है वो कभी भी प्रकट हो सकती है। और जो भगवान के जो नित्य पार्षद है उनमें कभी भी इच्छा प्रकट हुई नहीं और आगे कभी भी होगी नहीं। तो वो लेकिन वही जो नित्य सिद्ध या नित्य मुक्त जीव है वो फिर भी भगवान के अंडर क्यों रहते हैं, प्रोटेक्शन में। वैसे तो हर जीव भगवान के प्रोटेक्शन में रहते हैं, फिर ये जीव भी हमेशा भगवान के प्रोटेक्शन में इसलिए उनको कहा गया है क्योंकि जब वो भगवान की लीला में उनका सहायता करने के लिए जब वो आते हैं यहाँ पे तभी भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा जस्ट वो लीला यहाँ संपन्न करने के लिए वो भी एक सामान्य जीव की तरह, जैसे सामान्य बद्ध जीव की तरह वो अपना यहाँ पे क्या कहते हैं, जीवन विवरण करते हैं। जैसे जब अर्जुन देखो भगवान के नित्य पार्षद है, फिर भी कुरुक्षेत्र के जब रणभूमि में क्या हुआ, जब भगवान को गीता बतानी थी तो भगवान ने उनको वापस मोह में डाला, जहाँ पे वो कहे कि ये जो मेरे सारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं मुझे इनके साथ युद्ध नहीं करना है, ये मेरे परिवारजन है, मेरे को उनकी हत्या नहीं करनी है। तो भले ही वो नित्य सिद्ध और नित्य पार्षद है भगवान के, लेकिन जब यहाँ पे भौतिक जगत में जब लीलाएं होती है और भगवान उनको लेके आते हैं, बहुत देवी देवताएं भी ऐसे है जो भगवान की लीलाओं में सामान्य मनुष्य की तरह भाग लेके इस लीला में भगवान की सहायता करते हैं। और उस लीला के जब वो लीला होती है तभी वो जो है भगवान को वो पूरा लीला अच्छी तरह से संपन्न हो, इसके वजह से वो लोग भी एक सामान्य जन की तरह ही वो लोग बिहेव करते हैं वो लोग। और जब लीला संपन्न होने का जब समय आता है तब भगवान क्या करते हैं, अपने स्व इच्छा से उन सब लोगों को वापस यहाँ से लेके आध्यात्मिक जगत लेके जाते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पे होते हैं वो लीला के टाइम कभी कभी वो भी मोह में पड़ जाते हैं, वो भी एक बद्ध जीव की तरह लीला में भाग लेते हैं। इसलिए एक जैसे बद्ध जीव की तरह उनको भी बहुत सारी चीजों की आसक्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो लीला जो है भगवान को संपन्न करना है और वो एकदम नेचुरल दिखना है, इसके वजह से। और हम जो बद्ध जीव है हम डिफरेंट है, हम लोगों को भगवान यहाँ लेके नहीं आते लीला करने के लिए। हम लोगों ने भगवान से ईर्ष्या करके हम लोग यहाँ पे नीचे गिर गए। तो हमारे और जो नित्य सिद्ध और हम जो नित्य बद्ध का अंतर क्या है, भगवान जो है नित्य सिद्ध या अपने नित्य पार्षद को स्वयं लेके आते हैं लीला के द्वारा। अगर उनको मोह में डालना है तो वो मोह में डालते हैं। तो भगवान के इच्छा से वो एक नित्य बद्ध की तरह अपना पूरा लीला में वो एक्टिंग करते हैं। हाँ, एक्टिंग है ना, वो सही में मोह में पड़ जाते हैं भगवान की इच्छा से, स्व इच्छा से। हाँ, जैसे अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने ही उनको मोह में डाला था। और फिर जब
भगवत गीता सुना, वापस वो उन्होंने कहा कि आप जैसे कहोगे मैं वैसे करूंगा। तो इस तरह से काफी सारे युधिष्ठिर महाराज इतने धर्मराज होते हुए भी वो भी भगवान की स्व इच्छा से उन्होंने द्रुत क्रीड़ा में भाग लिया। हालांकि उनको सबने समझाया कि नहीं नहीं हमको ये नहीं करना है, उन्होंने भाग लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। तो सोचिए, धर्मराज है, हाँ, 12 महाजन में आते हैं युधिष्ठिर महाराज, हाँ, वो यमराज के ही विस्तारित रूप है, लेकिन उन्होंने अपने द्रौपदी जी को भी दांव पे लगाया। क्यों? ये भगवान की स्व इच्छा से। तो अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर आगे चल के महाभारत नहीं गढ़ता। तो भगवान ने उनको मोह में डाला, उनको द्रुत क्रीड़ा करने का इच्छा उत्पन्न की उनके हृदय में। इसकी वजह से उन्होंने वो द्रुत क्रीड़ा में भी उन्होंने भाग लिया। और जब ये पूरा लीला संपन्न हुआ तो भगवान ने क्या किया, सारे अपने जितने भी पार्षद थे, हाँ, नंद महाराज, यशोदा मैया, पांडव, उद्धव, इन सबको लेके वो वापस अपने आध्यात्मिक जगत लेके गए। हम लोग क्या है, हम लोग नित्यबद्ध किस तरह से है, हम लोगों ने भगवान से ईर्ष्या करके यहाँ पे भोग करने आए और अभी भी हम फंसे हुए हैं। और ऐसा है कि हमारा जो नित्यबद्ध, हमको इसलिए कहा गया कि कल हम आध्यात्मिक जगत गए भी, प्रभुपाद की कृपा से हम आध्यात्मिक जगत गए भी, भक्ति अच्छी तरह से करके, देयर आर चांसेस वहां पे जाके भी वापस हमें वो इच्छा वापस प्रकट हो सकती है, वापस स्वामी बनने की इच्छा प्रकट हो सकती है। इसलिए वी आर कॉल्ड नित्यबद्ध। तो हम यहाँ पे लाए नहीं गए, हम यहाँ गिर गए, हम ऊपर से अपना पोजीशन से गिर गए। और हमेशा हम भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के नित्य दास है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन भगवान के जो नित्य पार्षद है और हम नित्य बद्ध जो जीव है। तो हम लोगों को बहुत ही संभाल के भक्ति करना है, क्योंकि हमारा पतन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम लोग स्वामी बनने का हमारे अंदर वो जो इच्छा प्रकट हुई, वो कभी भी वापस जागृत हो सकती है। और अभी भी हम लोग भले ही भक्ति में आए हैं, फिर भी हम लोग देख सकते हैं हमारे अंदर वो जो 6 अनर्था है वो किस तरह से हमको ऊपर, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, और बहुत ही कम टाइम हम लोग सत्व गुण में रहते हैं। जो प्रभुपाद यहाँ पे वो नित्य और नित्य जीव, नित्यबद्ध और जो क्या है नित्य मुक्त और नित्य बद्ध जीव के बारे में बात कर रहे हैं। और हमको हमेशा याद रखना है, हम किसी भी स्थिति में, आध्यात्मिक जगत में हो या यहाँ पे हो, हम कभी भी भगवान की तुलना के या भगवान के बराबर हम लोग कभी नहीं पहुंच सकते। हाँ, मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर तो छोड़ो, मेरे बराबर का कोई नहीं, भगवान अर्जुन को बता रहे भगवत गीता में। तो हम लोग भगवान की बराबरी किसी भी स्थिति में हम लोग नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। हम लोग जो है भगवान के एक बहुत ही क्या कहते हैं, छोटे से इनसिग्निफिकेंट हम लोग पार्ट एंड पार्सल है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो उदाहरण है, जब हम एक लकड़ी को आग लगाते हैं, तो उस लकड़ी से, आग से बहुत सारी चिंगारी हम लोग देख सकते हैं ना, बहुत सारे हमको छोटे छोटे स्पार्क्स दिखते हैं एक लकड़ी को जब हम आग लगाते हैं। तो वो जो पूरी आग जो है ना, वो भगवान है। और वो जो छोटे छोटे जो स्पार्क्स या चिंगारी जो दिखते हैं, वो क्या है, वो हम जीव है। हाँ, वो भले वो नित्य बद्ध या नित्य मुक्त कोई भी हो, वो छोटे छोटे जो चिंगारी हमको दिख रहे, वो हम जीव है, तटस्थ शक्ति। तो प्रभुपाद जैसे यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं, जब तक वो चिंगारी आग में है वो जलती रहेगी और प्रकाशित रहेगी। हाँ, जैसे ही वो चिंगारी वो आग से सेपरेट हो जाएगी, इमीडिएटली क्या हो जाता है, वो बुझ जाता है। भले ही उसके अंदर वो क्वालिटी है, वो जलने की क्वालिटी है, प्रकाशित होने की क्वालिटी है, लेकिन जब तक वो आग से जुड़े रहेगी वो क्वालिटी वो रहेगा उसमें। जैसे ही वो आग से सेपरेट हो गया, इमीडिएटली वो बुझ जाती है चिंगारी। और एक अगर उदाहरण देखेंगे तो पत्ता, जब तक पत्ता पेड़ की शाखा से अटैच्ड है, उससे जुड़ा हुआ है, तो पत्ता हरा भरा रहता है। जो भी पानी हम लोग मूल में डालते हैं उस पत्ते को भी मिल जाता है। लेकिन वही पत्ता अगर उस टहनी से टूट गया, क्या हो जाता है, इमीडिएटली कुछ ही देर बाद वो पत्ता सूखने लगता है। फिर चाहे वो पत्ते के ऊपर आप कितना भी पानी डालो,
वो पत्ते को वापस वो हरा भरा नहीं रहेगा, या फिर वो क्या जो उसका जो एक लाइवली जो एक नेचर है वो निकल जाएगा, और कुछ ही दिनों में वो पत्ता पूरी तरह से सूख के मुरझा के वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो जब तक वो टहनी से जुड़ा हुआ है वो पत्ता, तब तक उसका अस्तित्व है, और उसको उसका जो है क्या कहते हैं, हरा भरा रहना निश्चित है। उसी तरह से हम लोग जब तक भगवान से जुड़े रहेंगे, हाँ, तभी हम लोग आनंदित रह सकते हैं। और भगवान से जुड़े रहना मतलब भगवान को केंद्र रख के अपना जो भी कार्य है उस कार्य को करना। जैसे ही हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, या भगवान से कहते हैं कि हमें आपकी सेवा नहीं करनी है, हाँ, मुझे खुद स्वामी बनना है और मुझे खुद भोग करना है, मतलब वो हमारा भी क्या हुआ, उस आग में जब हम चिंगारी थे, जो प्रकाशित थे, जो जल रहे थे, उस आग से सेपरेट होने के बराबर है। जो अभी आग से सेपरेट होने के कारण वो प्रकाश भी चला गया, हम या फिर वो पत्ता जो टहनी से टूट गया वो पूरा मुरझा गया। तो हम लोग जो अभी भौतिक जगत में अपनी स्थिति वही है, भगवान से हम लोग विमुख या भगवान से अलग हो गए हैं। इसके वजह से हम लोग इस जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के चक्कर में फंस गए हैं, मतलब हम लोग अभी मुरझा गए हैं। भले ही हम आत्मा जो है वो शाश्वत सच्चिद आनंद है, लेकिन अभी उस आत्मा ने क्या किया, भगवान से विमुख हुआ, भगवान से डिस्कनेक्ट होकर इस भौतिक जगत में आए। इसलिए अभी हम लोग जो है उस आत्मा के ऊपर एक आवरण आया है, एक भौतिक आवरण, ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का आवरण, और ये बहुत ही हमको ज्यादा पीड़ा दे रही है। तो अगर हमको इस पीड़ा से निकलना है तो क्या करना है, हमको वापस अपना ड्रेस चेंज करना है। हाँ, और कौन सा ड्रेस हमको वापस पहनना है, आध्यात्मिक ड्रेस। हाँ, वो आत्मा का जो आध्यात्मिक ड्रेस है, अगर वही पहनेंगे तो वापस हम लोग भगवान से जुड़ेंगे। और वो मतलब वो ड्रेस हमको तभी मिलेगा जब हम वापस भगवान से जुड़ेंगे, और तभी अपना जो है वापस वो जो आनंदमय जो जीवन है, जैसे भगवान हमेशा आनंदित रहते हैं, हम भी अगर भगवान से वापस जुड़ जाएंगे तो वापस हम लोग आनंदित हो जाएंगे। और उस कनेक्शन को वापस इस्टेब्लिश करने का ये पूरा जो इस्कॉन प्रभुपाद का ये जो पूरा आंदोलन है, ये आंदोलन और कुछ नहीं है, बस वापस भगवान से हमको कैसे कनेक्ट करना है। और उसका सबसे कलयुग में सरल उपाय जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र। जो अब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तभी ही हम वापस जो है अपना धीरे धीरे जो अपना चेतना है वो शुद्ध होगी, और उस शुद्ध चेतना में हम भगवान की शुद्ध भक्ति करेंगे, भगवान के भक्तों का सेवा करेंगे, और ऐसा सेवा करते 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 हम वापस भगवान से जुड़ जाएंगे। और अंततोगत्वा जब ये शरीर छोड़ने का जो समय आएगा तो हम इस शरीर को छोड़ के वापस अपना आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करके भगवान के आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए, अगर हम आध्यात्मिक जगत गए भी, वहां पे भी हम भगवान के नित्य दास ही रहेंगे, भगवान के अंडर ही रहेंगे, और हमको हमेशा भगवान की जो प्रोटेक्शन की जरूरत हमेशा रहेगी। आप भले ही मटेरियल वर्ल्ड में हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, हाँ, हमको हमेशा भगवान की प्रोटेक्शन की जरूरत रहेगी, और हम हमेशा भगवान के दास बन के ही रहेंगे। और हम नित्यबद्ध होने के कारण हमको ये हमेशा याद रखना है, नहीं तो वापस अगर हम आध्यात्मिक जगत में जाके अगर वापस हमने स्वामी बनने का अगर इच्छा प्रकट हुआ तो वापस यहाँ पे आएंगे, जो हमको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि हमको पता है भौतिक जगत कैसा है। तो ये हमको हमेशा याद रखना है। और अभी जब हम यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे दिखा रहे हैं हमको, तो हमको हमेशा जो है भक्ति में हर एक भक्त का शुभ चिंतक होना है। हमेशा उस भक्त के बारे में हमको उनके जो भी डे टू डे हमको उनका क्या कहते हैं खबर लेते रहनी चाहिए, जैसे यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं इफ यू लव मी यू शुड लव माई डॉग ऑल्सो। मतलब एक इसका उदाहरण प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अगर हम किसी के प्रति प्रेम करते हैं तो केवल उस एक व्यक्ति के प्रति प्रेम करके नहीं होगा, वो
व्यक्ति को तभी हम अच्छे लगेंगे जब हम केवल उनसे नहीं, उनके परिवार और उस परिवार में जो कोई भी है, हाँ, जैसे कि अगर कोई किसी के घर में किसी को कुत्ता पालने का शौक रहता है और हम उसके घर गए और अगर हमने उस कुत्ते की भी अगर तारीफ की कि अरे आपका कुत्ता कितना अच्छा है, हाँ, आप जो जैसे कहते हो वैसे सुनता है, तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, समझा। तो जब हम उस कुत्ते की भी तारीफ करते हैं उस घर में जाके, उस व्यक्ति के घर में जाके, और फिर उसके परिवारजनों का भी, तब एक्चुअली उस आदमी को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो उसी तरह से ही भक्ति में अगर हमको और लोगों को जोड़ना है तो सीक्रेट यही है कि हमको उस आदमी का भी शुभचिंतक होना है, हमेशा उसका बारे में पूछते रहना है, और उसके अलावा उसके जो भी परिवार में लोग हैं, उनका भी हमको हमेशा टाइम टू टाइम पूछना है कि आपके परिवार में सब कैसे है, माता पिता कैसे है, कैसे चल रहा है आपका जॉब, कोई संकट है, या ये जो हम लोग एंड ऑफ द सेशन जो प्रेयर करते हैं वो क्या है, यही है, हम लोग यही आदान प्रदान कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि चलो भागवतम का हमने सेशन किया, एक दूसरे को ज्ञान दिया और बोला चलो अभी हम लोग शाम को मिलते हैं, नहीं, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम पूछते हैं अरे आपके घर में सब ठीक है, तो कोई कहता नहीं प्रभु जी इसके लिए थोड़ा प्रेयर कीजिए, मेरे बहन के लिए प्रेयर कीजिए, मेरे बच्चों के लिए कीजिए, मेरे घर में जो मेरी वाइफ है उनकी तबीयत ठीक नहीं, उनके लिए। तो हम ये सब करके क्या कर रहे हैं, मतलब ये सब आदान प्रदान से हम लोग क्या साबित कर रहे हैं कि वी आर एक्चुअली अ फैमिली, हम एक परिवार है। और परिवार में क्या होता है, कोई भी अगर स्वस्थ नहीं या किसी परिवार में कोई एक भी आदमी दुखी है तो पूरा परिवार क्या होता है, एकजुट होके उस आदमी का जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, जो भी फाइनेंशियल, एक हेल्प करके उसको वहां से निकालते हैं। और जब हर कोई परिवार में स्वस्थ है, खुश है, तभी वो परिवार में खुशियां रहेगी। तो उसी तरह से दिस एंटायर ये जो प्रभुपाद का, इट इज अ फैमिली। प्रभुपाद ने बोला ना, हम लोग बोलते हैं ना, प्रभुपाद ने एक ऐसा घर बांधा है जिसमें हर, मतलब पूरा जो विश्व के जितने भी लोग हैं एक साथ आके रह सकते हैं। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के द्वारा भी हम यही सीख रहे हैं कि वी हैव टू बी, हम लोगों को हर किसी का शुभ चिंतक होना है। ऐसा नहीं कि खाली आए, सत्संग में प्रवचन सुना, कीर्तन किया, हरे कृष्णा बोला और निकल गए, फिर पता नहीं उसके घर में क्या चल रहा है, इसके घर में, तो फिर वो परिवार के जैसे वातावरण नहीं रहेगा। वातावरण परिवार के जैसा तभी रहेगा जब हम एक दूसरे के शुभ चिंतक रहेंगे। तो अगर आप इस पूरे प्रसंग में देखोगे, युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से हर किसी के बारे में पूछ रहे हैं। मथुरा में मतलब कितने सारे नाम उन्होंने गिनाए, ये कैसे है, ये कैसे है, भगवान के बारे में तो पूछा ही उन्होंने। और भगवान के अलावा जितने भी भगवान के पार्षद थे जिन्होंने भगवान की इस लीला में भाग लिया, हर किसी के बारे में पूछ रहे हैं, कैसे है वो लोग। और यहाँ पे भी कंटिन्यू करते हुए श्रुतदेव, उद्धव, नंद, सुनंद, उनको क्या जरूरत थी इतने सारे लोगों के बारे में पूछने का। तो वो हमको दिखा रहे हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ मतलब हमको हर किसी का ख्याल रखना है, हर किसी का शुभ चिंतक बनना है, और टाइम टू टाइम, और खाली दिखावे के लिए नहीं, सही में हृदय से हमको एक दूसरे का शुभ चिंतक बनते हुए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए हमको ऐसे ही लाइफ, अपना आध्यात्मिक लाइफ बिताना है। अगर यहाँ पे भी अगर देखेंगे, हम सब लोग जो आते हैं, एकत्र आते हैं, हम लोग केवल खाली फिलॉसफी डिस्कस नहीं करते, हम एक दूसरे के बारे में भी पूछते हैं, माता जी कैसे है, प्रार्थना ही करते हैं। तो ये सब जो है, इससे हमारा जो परिवार होने का जो एक आइडेंटिटी है वो स्थापित होता है कि हम लोग खाली ऐसे नहीं कि कोई मुंबई में है, कोई दुबई में है, कोई गोवा में है, कोई कलकत्ता में है, बस आ गए ऑनलाइन फ्री में, थोड़ा बहुत भागवतम का क्लास किया, फिलॉसफी समझाई और निकल गए। नहीं, ये सब करने का उद्देश्य यही है कि हम लोग एक परिवार है और हम लोगों को एक दूसरे का सही में चिंता है, अपना आध्यात्मिक चिंता, अपना भौतिक मटेरियल लाइफ का, स्पिरिचुअल लाइफ का, हम सही में एक दूसरे का चिंतित है। इसलिए बहुत सारे लोग एक दूसरे को फोन करके भी बात करते हैं, जब पता चलता है कि किसी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, प्रेयर करने के बाद में पूछते हैं आप गोली लिया कि नहीं, आप कैसे हो, अभी आप कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो ये सब हमको ऐसे ही कंटिन्यू करना है।
and that is why we call ourselves प्रभुपाद family. ये प्रभुपाद का फैमिली है. तो परिवार में हर किसी का हमको ख्याल रखना है. और जितना हो सके एक दूसरे को सहयोग करना है, एक दूसरे को बढ़ावा देना है भक्ति में. और टाइम टू टाइम पूछना है आपकी साधना के बारे में सब. तभी क्या होगा, हम लोग सही मायने में एक परिवार की तरह एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो जीवात्मा है, हम कोई भी स्टेज में हम लोग अपना परफेक्शन कोई भी स्टेज में क्यों ना हो, हम कृष्ण के नित्य दास ही रहेंगे. हम कभी भी स्वामी नहीं बनेंगे, वो हमको हमेशा याद रखना है. और हम जो नित्य बद्ध है, हम लोगों को याद रखना है कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आध्यात्मिक जगत जाने के बाद वापस अगर हमने ऐसे इच्छाएं प्रकट की स्वामी बनने की या भोगी बनने की, तो वापस हम नीचे आ सकते हैं. क्योंकि हम लोग भगवान के नित्य पार्षद के ग्रुप में नहीं आते, हम लोग नित्य बद्ध के ग्रुप में आते हैं. तो वो लोग नित्य पार्षद होने के बावजूद भी हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं और भगवान का प्रोटेक्शन में रहते हैं, भगवान के आश्रय में रहते हैं. तो हमको तो और ज्यादा रहना है, क्योंकि हमारे अंदर वो स्वामी बनने की इच्छा उत्पन्न होती रहती है. तो ऐसा मत सोचिए कि हमको खाली एक बार आध्यात्मिक जगत जाना है फिर हो गया. नहीं, वहां पे भी जाके हमको हमेशा यही याद रखना है, हमने जो गलती की थी वो गलती वापस दोहराना नहीं है. क्योंकि हमने एक बार गलती की, स्वामी बनने का इच्छा प्रकट की, अगर आध्यात्मिक जगत जाने के बाद वापस वो इच्छा प्रकट होने का चांसेस है, तो हमको इसलिए जितना हो सके वो वैसे चेतना नहीं आनी है. इसलिए हमको और भी ज्यादा शुद्ध भक्ति करनी है. क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि आध्यात्मिक जगत जाने के बाद वापस नहीं आएंगे हम लोग नित्यबद्ध होने के कारण आने का चांसेस है. तो अपना चेतना हमेशा हमको शुद्ध रखना है और हमेशा भगवान का दास बन के रहना है. और हमेशा भगवान का प्रोटेक्शन का हमको याचना करनी है. इवन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहां पे भी हमको भगवान के प्रोटेक्शन का हमको हमेशा याचना करनी है. भगवान से हमेशा कहना है कि भगवान हम यहाँ पे अभी आ भी गए तो प्लीज हमको वापस फॉल डाउन होने से बचाइए. तो ऐसा हम लोग अगर प्रार्थना करते रहेंगे तो अगर हम आध्यात्मिक जगत जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे. लेकिन वहां जाके हम भूल गए, हमको लगा कि अरे अब तो मैं पहुंच गया आध्यात्मिक जगत, अभी यहाँ पे मेरा कुछ बुरा नहीं हो सकता. और बिंदास अगर रहने लगे, और फिर अगर प्रकट हुई अरे ये कृष्ण हमेशा क्यों स्वामी है, क्यों इसकी सेवा करूं, चलो इस बार सही मायने में मुझे स्वामी बनना है, तो फिर वापस हम लोग नीचे गिर जाएंगे. तो हमको वापस नीचे गिरना नहीं है. अभी एक बार जाना है और वहीं पे रहना है. हरे कृष्णा. तो और भी बहुत सारे डिवोटीज है, तो प्लीज आप ऐड कर सकते हैं. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रभु जी क्लास बहुत सुंदर था और ऐसे लग रहा था कि क्लास क्यों खत्म हो गया. आपने बहुत छोटी छोटी बातें इतने अच्छे से समझा दिया ना कि कैसे हम लोग सबका आपस में व्यवहार होना चाहिए. और भगवान के नित्य पार्षद है, वो भी हमेशा भगवान की कृपा में उनके छत्र छाया में रहते हैं. और हम कैसे, हमारा व्यवहार कैसा है, बहुत सब कुछ अपने बहुत अच्छे से समझा दिया. ऐसे लग रहा था कि और सुने और कुछ आप कहे तो अच्छा है. बहुत अच्छा लगा. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा बच्चे. दंडवत प्रणाम. ये सब आपकी कृपा है. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. या प्रभु, आज बहुत बढ़िया क्लास था प्रभु. इट वाज वेरी नाइस. आपने वो जो 2-3 पॉइंट, इट वाज वेरी, मतलब नित्य बद्ध नित्य मुक्त के बारे में, फिर वो जो टहनी जो जब वो पत्ता नीचे गिर जाता है तो फिर उसमें हम कितना भी पानी डाले तो वो कभी वो हरा भरा नहीं होगा. तो वो भी आपने एक अच्छा पॉइंट कवर किया प्रभु. इट वाज वेरी नाइस क्लास प्रभु. मतलब बहुत अच्छा से आपने ये पर्पट को कवर किया प्रभु. 32 एंड 33 श्लोका का. प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है प्रभु. कैन आई आस्क प्रभु? हरे कृष्णा. यस प्रभु. यस प्रभु. हरे कृष्णा. प्रभु जी, जैसे आपने प्रभु जी नित्य बद्ध वी कैन अंडरस्टैंड, जैसे कि हम हैं प्रभु, जैसे कि यहाँ पे आते हैं, जैसे कि मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ. बट जब हम नित्य मुक्त के बारे में बोलते हैं प्रभु की मतलब वो भगवान स्वयं उनको लेके आते हैं,
एंड हमने ये भी सुना था कि भगवान को जब ऐसा कुछ खुद आनंद प्राप्त करना है या वीर्य रस कुछ प्राप्त करना है तो वो स्वयं उनके साथ वो सब रस का आस्वादन करते हैं पार्षदों के साथ। पर प्रभु जी जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कि पांडवों के लाइफ में इतना कुछ प्रॉब्लम्स फेस किया उन्होंने, और देयर आर सो मेनी डिवोटी, जैसे कि हम सुदामा के बारे में देखते हैं, वो मतलब पूरी लाइफ उन्होंने मतलब पूरा इसमें निकाला, गरीबी में निकाला, उनको खाने के लिए भी नहीं था, ये वो सब प्रभु। सो हम मतलब ये जो भी जो नित्य मुक्त जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, मतलब तो उसको हम किस एंगल से देखेंगे प्रभु? या ये मतलब ये भी भगवान की लीला है, बिकॉज़ दे आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम्स, जैसे कि हम पंच पांडव के लाइफ में देखते हैं कि दे फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स, और ऐसे बहुत सारे जो भक्त है जो उनको मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। सो हाउ वी कैन मतलब ये उनके मतलब लाइफ मतलब उनका कर्म की वजह से हुआ या दैट इज ओनली लीला प्रभु, ये से पूछना था। हरे कृष्णा। उद्धव पृष्ठ प्रभु आप आंसर करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु। उद्धव पृष्ठ प्रभु ने हाथ हरे सॉरी प्रभु, मैंने पूरा प्रश्न सुना नहीं। हम लोग अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं दर्शन के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। I didn't hear the question. If you can repeat the question, or if you can take you can give your points, maybe I understand what it was. मैंने क्वेश्चन आधा अधूरा सुना। सॉरी प्रभु। क्वेश्चन ये है प्रभु कि जैसे अभी देर आर टू कैटेगरीज प्रभु। अभी सर्वोदय गिरि प्रभु जैसे पूछ रहे कि देर आर नित्य सिद्ध या नित्य मुक्त, ये जो है भगवान के मतलब इटर्नल एसोसिएट है, जो भगवान उनको अपना जब लीला करना होता है तो खुद लेके आते हैं और अपने पूरी लीला में उनको हर किसी को एक एक रोल देते हैं। तो वो भी जब आते हैं यहाँ पे, तो जैसे पांडव हुआ, सुदामा हुए, तो उनको भी मतलब कितने सारे कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो प्रभु का यही प्रश्न था कि ये मतलब हम लोग किस तरह से देखें, इवन दो दे आर इटर्नल एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड, तो वो भी एक सामान्य जन की तरह कितना कठिनाइयों का, जैसे पांडव हो गए, सुदामा हो गए और बहुत सारे भक्त, तो इज इट पास्ट टाइम या मतलब उनका कर्म के वजह से दे आर अंडरगोइंग? पास्ट टाइम, these are past time. They are basically when they're coming to this material world, they are coming. Why? Because they want to serve the Lord. So even in that situation, even in that condition, they are coming here to give the pleasure to the Lord. And the best example what we can see is about Jay and Vijay. भगवान को मन में ये हुआ कि भाई मुझे युद्ध मतलब ये करना है, उनके साथ में अपने पावर को दिखाना है, स्ट्रेंथ को दिखाना है। तो देन और पूरी जो रचना हो गई, और देन they came and they took 3 births, जो हम जानते हैं कि शिशुपाल और दंडवत। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो this is a pastime of the Lord, and Lord wants to have them, and these associates they come here to give the pleasure to the Lord. तो सिमिलरली जब मल्ल युद्ध करना है कंस के एरिना के अंदर, वहां पर तो दोस्त भगवान को कुश्ती का जो है अपना जो है आनंद लेना है, तो वो उसके लिए कौन आए? वो भगवान ने वो अरेंजमेंट किया, और वहाँ मूषिक आया, उसके साथ में उन्होंने मल्ल युद्ध किया। तो these are basically they are coming here, any of the situations they are coming here to give the pleasure to the Lord Krishna. So this is what I understand, and if like this is my perception for understanding what I have heard. So अगर आपको कुछ, hope I am able to answer the question correctly. नो प्रभु, परफेक्ट आपने जो कहा, क्योंकि भगवान के वो पार्षद भगवान को आनंद देने के लिए, जैसे आपने कहा प्रभु, एकदम परफेक्ट है। So it is not the karmas. करेक्ट, यस प्रभु। इसलिए जैसे लीला संपन्न होती है, भगवान उनको लेके जाते हैं वापस। अगर कर्म होते थे अभी हम लोग सोचेंगे कि यादव जो थे, यादव आपस में लड़कर क्यों मर गए?
आंसर दिया है तो। हरे हरे कृष्ण प्रभु। जो हाँ, यादव आए थे यहाँ पर, सॉरी, हाँ, यादव जो आए थे, यादव यहाँ पे आके और जब ये बोलते कि यादव आपस में लड़के मर जाएंगे, तो सब यादव आपस में लड़ के मर गए। मगर वो क्या था, हम लोग बोलेंगे अरे ये तो भगवान के जो इतने अच्छे जो भक्त थे वो लोग आपस में लड़कर कैसे मर गए। नहीं, बिकॉज लॉर्ड नेवर वांटेड एनीबडी, कोई भी उनका यहाँ पर रहना नहीं चाहता था। और भगवान ने उनके साथ में कमिटमेंट किया था, तुम मेरे साथ में चलोगे और मेरे साथ में वापस चलोगे, आओगे यहाँ पर टू परफॉर्म दिस लीला, एंड दे विल हैव टू गो बैक। और कोई भी correct. भक्त जो है भगवान से, जो वहां से आए थे, तो वो यहाँ पर रहना कोई भी पसंद नहीं करता। तो भगवान से भगवान ने कमिटमेंट किया था उनको। तो यहाँ से जब सब यादव आपस में लड़कर मर गए, और एक ऐसे अरेंजमेंट किया हुआ था कि भाई ठीक है, उनको श्राप मिले। और जो क्या इसने धृतराष्ट्र की पत्नी ने, उन्होंने ये उनको श्राप दिया था कि तुम लोग लड़के मरोगे, तो लड़के मरे। तो बट दैट वाज एन अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड। तो दिस इज बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, और वो लोग भगवान के पार्षद होने के कारण उनको और कौन मार सकता है? सो दे हैव और टू, कोई मार सकता है। ट्रू, वेरी ट्रू। तो इतने पावरफुल है, तो भगवान ने उन्हीं के बीच में एक जैसे आपने कहा लीला रचाई, एंड दे वेंट बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू, वेरी वेरी वंडरफुल क्लास। और एक बात याद आई कि जैसे अपने परिवार के बारे में बताया, तो परिवार क्या है? तो हम बोलते हैं कि वार कैसे होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो खाली एक सोमवार को नहीं करना है, खाली मंगलवार को नहीं करना है, हमको इन सभी वारों के परे करना है। तो वो गया परिवार। तो वी हैव टू बी विद द लॉर्ड थ्रू आउट, एज नॉट ओनली ऑन पर्टिकुलर डे बट ऑल द टाइम। जिसको बोलते हैं भगवान की मर्सी कैसे होती है, तो एटीएम यानी एनी टाइम मनी, वो नहीं होता है। यहाँ ऑटोमेटेड टेलर मशीन नहीं होता है, वो होता है ऑल टाइम मर्सी। तो भगवान की मर्सी जो है ऑल टाइम रहती है। तो उसी तरह जो हमको भी भगवान को ऑल टाइम याद रखना है। तो इन सोमवार या मंगलवार या बुधवार नहीं, इन सबसे परे एक परिवार जैसे हम एक दूसरे के साथ में रहते। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु। तो सर्वोदय गिरिधर प्रभु, आपको प्रभु, थैंक यू सो मच उदयप्रेश प्रभु जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि वो जीव तत्व होने के कारण, प्रभु जीव तत्व होने के कारण जब वो यहाँ पे आते हैं, तो भगवान की इच्छा से मतलब वो लोग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह वो लोग बिहेव करते हैं, क्योंकि उस लीला में रियल लगे। मतलब अभी देखो नाटक में जैसे हमको पता है नाटक चल रहा है, राइट? तो उसमें हर किसी को पता है वो क्या किरदार कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे भी वो नाटक की तरह होगा तो फिर उतना मजा नहीं आएगा। इसलिए सब लोगों को भगवान क्या करते हैं, अपनी स्व इच्छा से उनको मोह में डालते हैं। इसलिए हर कोई मतलब ये मेरा परिवार है ये सब, तो क्या होता है पूरा एक्टिंग एकदम रियल हो जाती है। और जब सब खत्म होने के बाद फिर भगवान उनको वापस अपने धाम लेके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब रहते हैं वही नित्य पार्षद, दे आर नॉट एक्टिंग, वो भगवान की इच्छा से वो लोग मतलब जो मतलब जिस तरह से उनको रहना है वो लोग उस तरह से अपना किरदार निभाते हैं। हरे कृष्णा। या थैंक यू सो मच सूरज माधव, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू। आपका प्रश्न अच्छा था, सबको आपकी वजह से सबको लाभ हुआ। यस। और किसी का कुछ कमेंट है या कुछ आपको ऐड करना है? और यहाँ पे और एक अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट जो प्रभुपाद लास्ट में लिखते हैं कि इवन आफ्टर प्रोलॉन्ग तपस्या ऑफ सीवियर टाइप, मतलब हम लोग ना कभी कभी लगता है बहुत सारा तपस्या करने से भगवान की भक्ति मिल सकती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि मतलब तपस्या करनी है नो डाउट, लेकिन तपस्या अकेले से हमको भक्ति नहीं मिलेगी। हमको भक्तों का आशीर्वाद बहुत इम्पोर्टेंट है, और भक्तों का मर्सी बहुत इम्पोर्टेंट है, एसोसिएशन। तो जब उनका वो रहेगा तो भले ही तपस्या कम हो, लेकिन अगर भक्तों का मर्सी रहेगा तो
हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए जब भी भक्त हमारे बारे में चिंता करते हैं तभी हम लोगों का भक्ति में ज्यादा प्रगति होता है। तो हमेशा हम लोगों को इसलिए भक्तों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना है ताकि हमेशा भक्त हमारे बारे में चिंता करते रहे। जो भी जब भी भक्त हमारे बारे में चिंता करते रहते हैं तो इट इज लाइक हमको भगवान की करुणा या मर्सी मिल रही है। हरे कृष्णा। तो आई थिंक और कुछ प्रश्न है तो हम लोग नरसिम्हा आरती ले सकते हैं आज। और थैंक यू सत्यराज प्रभु, इतना अच्छा दर्शन आप दिला रहे हैं। वाह, शिला प्रभुपाद की जय। तो थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। देखो भक्त कितने करुणामय होते हैं, वो लोग स्वयं वहां जाके हम लोगों को यहाँ घर पे बैठे बैठे दर्शन दे रहे प्रभुपाद का, श्री श्री राधा पंडरी नाथ जी का, भक्तों का। तो यही है पर सुख सुखी पर दुख दुखी। थैंक यू सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा। आज किसका है ये नरसिम्हा आरती? हरे कृष्णा प्रभु, मेरा है प्रभु। हाँ हाँ, यस माता जी, आप। नरसिंह भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानकालाय इतो न सिंहो परतो न सिंहो यतो यतो यामि ततो न सिंहो बहे न सिंहो हृदये न सिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपते तव करकमलकरे नाथ मधुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवदीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री श्री विघ्नविनाशक भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सानिका माता जी, थैंक यू सो मच फॉर नरसिम्हा आरती माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सत्यराज प्रभु फॉर showing us wonderful darshan. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you so much, Satyaraj Prabhu. So, meanwhile, we will take the prayers also. Prayers at the lotus feet of Shri Shri Radha Gopinath Ji. We
Rajeshwari Mataji, Her Grace Premavati Mataji. We will pray for His Grace Chitari Prabhu, His Grace Paripurna Her Grace Paripurna Radha Devi Dasi Mataji.